हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स को के टाइप्स को रिवाइज करेंगे। ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड देन विल कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल दैट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड हाफ बेस इनटू हाइट, देन विल कंपेयर दैट फॉर्मूला विद द हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, so just concentrate on the board, take out a notebook and pen, listen to me carefully, make proper notes as usual. Okay, so let's get into it. So what is a triangle? Triangle, everybody knows what any three sides polygon is called a triangle. ठीक है, let's say these are the vertices A, B, C are vertices of a triangle, and these are the angles of this triangle, and these are the sides. Okay, so these are the vertices, these are the angles, and these are the sides. Okay, of a triangle. Okay, so we can write angles like this: angle A equals to angle BAC equals to angle CAB. We can write, right? सेंटर में देखो, सेंटर इज A, ठीक है, तो वी कंसीडर द सेंटर वन, जो भी सेंटर में है वी कंसीडर दैट। एंगल B वी कैन राइट लाइक दिस, CBA इक्वल्स टू एंगल ABC. Similarly we can write for angle C like BCA equals to angle ACB. Okay, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, नो नीड टू कंफ्यूज इन दैट. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स और साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड्स. अगर साइड्स के बेसिस पे देखें तो हमने क्या क्या नाम दिए हैं इनके ट्रायंगल्स के? वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, second is isosceles triangle, and third is scalene triangle. Okay, so इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इन विच ईच साइड इज इक्वल, है ना, every side is equal. That means AB equals to AC equals to BC, and each angle will be equal. Angle A will be equals to angle B equals to angle C. और कितना होता है इसमें? 60, because तीनों sides का sum, angles का sum 180, so each angle will be 180 by 3, that means 60 degree. And what about isosceles triangle? Any two sides will be equal. Let's say AB equals to AC, right? So angle B will be equals to, this implies angle B will be equals to corresponding, सामने वाली साइड है उसके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. A तो वर्टेक्स हो गया है ना, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C हमारे इक्वल होंगे इन दिस केस. ओके, सो दीज आर द, एंड व्हाट अबाउट स्केलिन ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर अनइक्वल. ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है. AB इज नॉट इक्वल टू BC, इज नॉट इक्वल्स टू C. ओके, व्हाट अबाउट द एंगल्स? ट्रायंगल, हम एंगल्स की बेसिस पे क्या नाम है इनके? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स. ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे क्या नाम है इनके? टेल मी. वन इज, छोटा एंगल क्या होता है? एक्यूट. सो एक्यूट ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल should be less than 90 degree. ठीक है, we call that acute triangle. Second, what about this one? We call it right triangle. ठीक है, right triangle means ये this one, any one angle should be 90 degree. ठीक है, any one angle of a triangle should be equals to 90 degree. और जहाँ पे 90 डिग्री एक एंगल अगर ट्रायंगल में है, देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ABC, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का सम स्क्वायर. ओके, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट? So we apply this formula if we have one angle is 90 degree.
right? And what is the name of other last one, third one? Obtuse triangle, in which one angle should be greater than 90 degree. ठीक है? So we call that obtuse triangle. Okay? So we can say equilateral triangle is always a acute triangle because देखो इसमें acute में हमेशा less than 90 होगा and इसमें an equilateral is always 60 degree which is always less than 90. So an equilateral triangle is always an acute triangle. Okay? So n, you can write it down, you can note it down. An equilateral triangle is always an acute triangle. ठीक है? But this equilateral triangle can't be a right angle triangle because इसका एक एंगल 90 होना ही जरूरी है right angle का, और यहाँ पे क्या है, each angle is 60, so it can't be right angle. Also it can't be obtuse क्योंकि greater than 90 हो ही नहीं सकता equilateral में. So but यहाँ पे लिख सकते हैं but it can't be right angle triangle, ये right triangle as well as, और क्या नहीं हो सकता, obtuse triangle. ठीक है? Just note it down. बट ये राइट एंगल एवरीथिंग, देखो आइसोस्केल्स भी हो सकता है. आइसोस्केल्स ट्राइंगल कैन बी एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज. ठीक है? चेक करके देख सकते हो आप. ऐसे स्केलियन भी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा ले लो, बाकी दोनों साइड्स, क्योंकि सम बस 180 होना चाहिए, राइट? तो अदर्स कैन बी एनीथिंग, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज. सो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल गो फर्दर. So now we will compare the standard formula of area of triangle with the Heron's formula to find the area of triangle, right? So perimeter कैसे निकालते हैं किसी triangle का? First of all, perimeter is sides, length of the sides of a triangle. और area क्या measure करता है? Area measures the how much space is inside a shape, right? So what is the formula? What is the standard formula we have studied so far? Standard formula for finding area of triangle is what? Half base into height, base into height, है ना? See, this is a triangle and let's draw a perpendicular from the vertex to the third side, है ना? Okay, so let's say this is A, this is B and this is C. So this is say height and this is the base. Okay, so we have a area of triangle is half base into height. So अभी इससे हम किस किस का एरिया निकाल सकते हैं? If the all sides are equal, this is an equilateral triangle, है ना? इसका फॉर्म we can apply this formula to find out the area of the triangle. because क्यों फाइंड कर सकते हैं? because यहाँ से h होगी और ये जो वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द थर्ड साइड, इट विल डिवाइड द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो इस केस में क्या होगा, दोनों हमारे दोनों केसेस में, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों केसेस में हमारा ये h इक्वल आएगा. अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकालोगे, यू विल फाइंड आउट h इज सेम. ठीक है? सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. एंड इफ यू हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टिल एंड से दीज साइड्स ए, यहाँ पे अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं ए, यहाँ पे इफ वी हैव दीज 2 साइड्स ए इक्वल एंड वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द थर्ड साइड, है ना? दिस इज बी सी. ठीक है? तो यहाँ से भी क्या होगा, दीज बोथ द it will divide the third side into 2 equal parts. ठीक है? It will bisect the third side. Clear? So again you will get by Pythagoras से दोनों triangles का area क्या होगा, same होगा, right? So h you can find from here. So you can apply area of triangle directly by using half base into height. And यहाँ तो आपको मिल ही जाएगा. You will get like this कि right angle triangle में है, this is 90 degree, this is height and this is the base. ठीक है? So in these 3 cases you can apply the area of triangle and you can apply the standard formula. But what about if you have all the sides unequal, let's say this is A, this is B and this is C. ठीक है? अब यहाँ से क्या है, आपको तीनों sides unequal है, and if you will draw a perpendicular line from the vertex to the third line,
you will not get these it will not divide, it will not bisect the third sides, right? क्योंकि unequal sides हैं तो ये equally इसको divide नहीं करेगा. So you will not able to get the height of this triangle. So इसमें क्या हुआ है, यहाँ से start होता है Heron's formula. इसका नाम Heron's formula दिया है because Heron's has derived this, nothing else, कुछ change नहीं है. देखो यहाँ से भी अगर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, यही पढ़ा है ना, और ये भी इसी से आया है, हाफ बेस इंटू हाइट. यहाँ से एच हमने फाइंड किया था. देखो कैसे फाइंड किया था एच हमने यहाँ से. देखो आई टेल यू, देखो अभी यहाँ पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, √3/4 ए स्क्वायर. यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से वी हैव गॉट एच और देन वी हैव पुट एच देयर, तो वी हैव गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4. यहाँ भी यही सेम केस है, बस यहाँ से हमने दो डिफरेंट हमें ट्राइंगल हैं 90 डिग्री, जो कि बोथ आर अनइक्वल, बोथ द ट्राइंगल्स आर अनइक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो यहाँ से दोनों को कंपैरिजन करो. यहाँ से इस केस में क्या होगा, इसमें हम फाइंड यही करेंगे, यही चीज़ निकालनी है हमें, बस दोनों ट्राइंगल्स को कंपैरिजन करके वी विल फाइंड आउट एच एंड वी विल पुट द हाइट इन द सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है, बस इसको नाम दे दिया Heron's फॉर्मूला. और इससे क्या होगा, यू कैन फाइंड आउट, अगर अनइक्वल साइड्स हैं, यू कैन, यानी स्केलिंग ट्राइंगल है, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग Heron's फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज Heron's फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. ठीक है, देखो पूरा लिखते हैं. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, s माइनस a, s minus b, s minus c, where a, b, c are sides of a triangle. ठीक है, and s is what, s is semi perimeter. s is semi perimeter. पेरीमीटर क्या है यहाँ पे, a प्लस b प्लस c, तीनों साइड्स का सम एंड डिवाइडेड बाई 2. इट इज अ सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर डिफरेंट साइड्स. तो यहाँ पर क्या होगा, इस Heron's फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. इसके लिए इनका ही निकल जाएगा तो सभी का निकल जाएगा, क्योंकि अगर इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर s माइनस a, यू विल गेट इट, है ना. ठीक है, तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल का निकल गया. If all the three sides equal, a equals to b equals to c, then it will be an equilateral triangle. ठीक है, और इसके लिए इनका तो फिर आप है a b c, all the sides are unequal. So both the formulas इसी से यूज हुए हैं. बेस फॉर्मूला हमारा यही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है, विल प्रूव इट. इफ यू वांट मी टू, देन वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो कि हाफ बेस इंटू हाइट कैसे फाइंड हुआ. चलो इसको प्रूव करते हैं एक बार. ठीक है, चलो जैसे अगर लेट्स सी वी हैव अ ट्राइंगल, लेट्स सी वी हैव एन आइसो इक्विलेटर ट्राइंगल. या फिर इक्विलेटर के लिए क्या होगा कि अगर तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज एच. ठीक है, तो एच कैसे मिलेगी, यहाँ से इट विल डिवाइड दिस थर्ड लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2. लेट्स सी दिस पॉइंट इज d एंड दिस इज a b c, राइट. तो यहाँ से a/2. ठीक है, now you can find out, you can measure the height h. कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, a स्क्वायर, दिस हाइट इज a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस h स्क्वायर. ठीक है, यही हुआ ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू अदर साइड्स. ठीक है, तो यहाँ से वी हैव गॉट एच स्क्वायर इज वॉट, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स 4 माइनस 3/4 a स्क्वायर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज h इज वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a. ठीक है, यहाँ से हाइट मिली हमें h, जस्ट पुट दिस हाइट इनटू दिस फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज वॉट, हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस क्या है यहाँ पर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों का बेस से तीनों साइड्स इक्वल है. a हमने एज्यूम किया, सो लेट्स टेक a. और हाँ, यहाँ पर h क्या फाइंड किया हमने, √3/2a. सो वी हैव गॉट √3/4 a स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. और ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ था, लेट्स से
यहाँ पर देखो, इफ वी हैव दिस ट्राइंगल, ठीक है, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस ट्राइंगल और जस्ट प्लेस इट ओवर हियर लाइक दिस, फ्लिप करो और प्लेस करो लाइक दिस, ठीक है। दो इक्वल ट्राइंगल्स हैं, इसका अब ये कैन यू सी दिस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब ये दो ट्राइंगल्स बने हैं, तो ये दो ट्राइंगल्स, पूरा पैरेललोग्राम कितना है, बेस इनटू हाइट, तो एक ट्राइंगल का कितना एरिया हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, जस्ट वी हैव गॉट इट, सो नोट इट डाउन। Now area of triangle by using Heron's formula. What is the Heron's formula for finding the area of triangle? Is square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. Okay, where a, b, c are sides of a triangle. Okay, let's say this side is A and this side is B, okay, and this side is C. Okay, let's say these are the vertices of this triangle A, B and C, and this perpendicular from the vertex meets this BC at D. Okay, so ABC are the sides of this triangle, and what about the S? S is a semi-perimeter. Semi-perimeter. Okay, semi-perimeter means this perimeter divided by 2. Perimeter is what? A plus B plus C and divided by 2. So now we are going to prove this Heron's formula. So how will we prove it? See, now we have two triangles. Let's say this is the height. Can you see these two triangles, ADC and ADB, and both are the right angle triangles. So just apply the Pythagoras theorem and find out the h from here. Okay, once you will get the h, just apply the old standard formula, half base into height. Just put this h into that formula, you will get the area of this triangle. Okay, so let's do it. In triangle ADC, b square equals to this one square and h square. Let's say this DC is x, so so what will be the BD? Remaining क्या है, a minus x. इस पूरे में से x subtract कर दो, तो it will be a minus x. Okay, so let's say this is x, so we will write here x, and this height is plus h square by using Pythagoras theorem. Okay, similarly in this triangle ADB, similarly in triangle ADB now. Okay, apply the same Pythagoras theorem. Now this hypotenuse square is what, c square equals to a minus x whole square and again plus h square. So can we subtract this? दोनों में यहाँ पे h square है. If we'll subtract these two, then we'll ये दोनों कट हो जाएंगे, h square. So subtract, let's say this equation is 1 and this equation is 2. So 1 minus 2, what we'll get? b square minus c square, यहाँ ऐसे subtract कर दो उसको, right? So b square minus c square equals x square minus a minus x whole square. Okay, h square minus plus कट जाएंगे. So just solve it. b square minus c square, this implies b square minus c square equals x square minus a square. So solve करो इसको. a minus b whole square formula is what? a square plus b square minus 2ab. So यहाँ here 2ax. Clear? So यहाँ पे x square माइनस अंदर जाएगा, माइनस x square plus s square कट जाएंगे. So what will get? b square, यहाँ से देखो b square minus c square will be equals to minus a square and plus 2ax. Clear? Okay, तो just find out x here. तो यहाँ से x कितना मिलेगा हमें? x will be equals to minus a square plus b square. इसको लेफ्ट में ले जाओ, a square plus b square minus c square and divided by 2a. So we have got this x. Okay, let's say this equation is 3. Okay, so just put the value of x in equation number 1. Put value of x in 1. किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट इसमें इजी रहेगा तो जस्ट पुट इट इन इक्वेशन 1. ओके, सो हमने इसमें पुट करा हमने इक्वेशन 1 में, देन व्हाट विल गेट? b स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। और माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर से हमने क्या किया है, सिर्फ x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, नथिंग एल्स, ओके। बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ओके। तो जस्ट फाइंड आउट एच स्क्वायर हियर, दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर इज व्हाट, इसको इधर लेफ्ट में ले जाओ, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a और इस सब का होल स्क्वायर, ओके। सो व्हाट विल बी द एच, स्क्वायर रूट ले लो दोनों का, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a, ओके, और इस सब का होल स्क्वायर, क्लियर। अब कैन यू सी ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। What is the formula of x square minus y square is x plus y and multiply x minus y, okay. So here x is what, b, and y is this part, okay. So just apply this formula, you will get, see b is what, x is what, b, तो x के प्लेस में हमने क्या रखा, b, ये क्या x plus y बनाना है हमें, तो b plus this part, a square plus b square minus c square upon 2a, okay. Again x minus y, x is this, y is this, so b minus y, this part, a square plus b square minus c square upon 2a, like this, okay, clear, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व करो अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a, इज इट क्लियर, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, कैलकुलेशन है और नथिंग एल्स। 2ab माइनस ए स्क्वायर अंदर ले जाए माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है यहाँ तक, इज इट क्लियर। सो h इम्प्लाइज, तो ये सब h ही चल रहा है ना यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो a भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस सी स्क्वायर, 2a यहाँ से दोनों में कॉमन लेने बाहर, ठीक है, स्क्वायर रूट से कॉमन आ जाएगा एक बार 2a, 1/2a, ओके। सो नाउ वी हैव गॉट दिस वन एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये माइनस देखो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से सी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं इसको, सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ये कैसे बनाइए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया हमने, सो वी हैव गॉट दिस वन, क्लियर। तो कैन यू सी अगेन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला बना ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज व्हाट, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सो अप्लाई दैट once more, okay. So we can write over here 1/2a स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी, यहाँ पर x का काम कर रहा है, c इज व्हाट, y, सो अगेन a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये फॉर्मूला हमने वी आर गोइंग टू अप्लाई वंस मोर, ठीक है, समझ रहे हो ना। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो यहाँ से अगेन सी दिस प्लस दिस एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस सी प्लस ए माइनस बी, ओके, एंड यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज व्हाट, एक्स माइनस वाई, तो सी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए प्लस बी, यहाँ तक ठीक है, इज इट क्लियर। लेट्स से दिस इक्वेशन इज, अभी हमने कितनी इक्वेशन एज्यूम की है, 1 2 3, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 4, दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन, ओके। नाउ कैन यू सी कि हमें क्या प्रूव करना है, एस क्या है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी, सो लेट्स एज्यूम दिस a प्लस बी प्लस सी इज 2s, ठीक है, ये s इक्वल्स है ना, सो लेट्स एज्यूम दिस वन इज इक्वल्स टू 2s, सो लेट मी इरेज दिस, सी let 2s equals to a plus b plus c, so this implies s equals to a plus b plus c by 2, तो ये हमने एज्यूम किया है यहाँ से, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5 बिकॉज वी नीड टू पुट इट इन दैट इक्वेशन, ओके। सो नाउ फाइंड आउट s माइनस ए, s माइनस ए इज व्हाट, s क्या है, a प्लस बी
प्लस सी बाई 2 और माइनस ए, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, दिस इम्प्लाइज a हमारा माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से वील गेट b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो ट्वाइस ऑफ s माइनस ए इज वॉट, ट्वाइस ऑफ s माइनस ए इज वॉट, b प्लस सी माइनस ए, ओके। सिमिलरली फाइंड आउट s माइनस बी, s माइनस बी इज वॉट, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, एंड ट्वाइस ऑफ s माइनस ए हमें क्या मिला, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें। सो लेट्स से दिस इक्वेशन इज 6, ओके। सो नाउ फाइंड आउट s माइनस बी, s माइनस बी क्या मिलेगा यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और माइनस बी, तो 2b माइनस बी कितना, माइनस बी, तो वील गेट a प्लस बी, माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a प्लस सी माइनस बी कितना मिला हमें, ट्वाइस ऑफ s माइनस बी, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 7, एंड s माइनस सी फाइंड आउट करो। सिमिलरली s माइनस सी वॉट, a प्लस बी, s इज वॉट, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड माइनस सी, ओके। सो यहाँ से माइनस 2c प्लस सी और माइनस 2c इज माइनस सी, सो वील गेट a प्लस बी माइनस सी एंड डिवाइडेड बाई 2, लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ओके। बस आपको इन सब की वैल्यू जो यहाँ पर हैं, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस बी है ना, a प्लस सी माइनस बी, तीनों से आपको मिल रही है यहाँ पे, देखो एक तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया 2s, ओके। सो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4, नाउ पुट वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ s या 2s, ट्वाइस ऑफ s माइनस a, ट्वाइस ऑफ s माइनस b, बल्कि इसको ऐसे लिखो इन इक्वेशन में, इसे ना हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम इन सब की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो इन सब की वैल्यू को उसको फ्रॉम इक्वेशंस, किस इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर दिस इज 5, दिस इज 6, 2s को हमने क्या ना 5, 6, 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशंस 5, 6, 7, 8 पुट इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो इन सब की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करें। सो व्हाट विल गेट, हाइट क्या मिलेगी हमें, h इक्वल्स 1/2a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे 2s, देन ये देखो आपको सब मिल रहा है c प्लस बी, सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए और दिस, तो व्हाट विल गेट ट्वाइस ऑफ s माइनस a, ट्वाइस ऑफ s माइनस b एंड ट्वाइस ऑफ s माइनस c, इज इट क्लियर। देखो सारी वैल्यूज मिली ना हमें यहाँ से, राइट, जस्ट नोट इट, ओके। 1/2a, यहाँ से अब देखो आप, देर आर 4s, कैन यू सी 4 2s, राइट, सो वी कैन टेक आउट 2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वी कैन टेक आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट, सो व्हाट वी हैव गॉट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ओके। सो नाउ वी हैव गॉट 2/a and this one, okay, 2/a and this value. So let's say this equation is equation number 9. अभी हमें h, we have just got the h from this formula, ठीक है, अभी हमें just h मिला है, तो just what we need to find out, area of triangle, therefore area of triangle by using standard formula, ये तो हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है, by using standard formula, और if you know ओनली साइड से आपको एरिया निकालना है तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट यहाँ पे हम h निकाल के, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव इट, दैट्स वाई वी नीड टू फाइंड आउट लाइक दिस, ठीक है। सो हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर हमें हाफ बेस इज वॉट, बेस इज a वी हैव अज्यूम्ड, सो जस्ट वी विल राइट डाउन a एंड हाइट वी हैव गॉट दिस वन, 2/a square root of s minus a, s minus b and s minus c, is it clear। बस यहाँ से देखो ये सब कट गया, so we have got this formula s minus a, s minus b and s minus c, where a b c are the sides of the triangle, ठीक है, which are, अभी हमने क्या assume किया है, ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, इसके लिए ट्राइंगल है, यानी तीनों के साइड्स हमारा डिफरेंट है, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर, सो वी हैव प्रूव्ड इट, ठीक है।
और ये आप किसी के लिए भी, ये फॉर्मूला किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो या आइसोसेलीज है या फिर स्केलियन, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट ये जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट है, हम ये स्केलियन ट्राइंगल के लिए यूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। बाकी चीज़ों में क्या होता है, इक्विलेटर में क्या आपको मिला, ये आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों साइड्स आपकी इक्वल होगी, सो यू विल गेट द हाइट, ठीक है। ऐसे ही आपने अदर्स में, राइट एंगल में भी देखो डायरेक्ट आपको हाइट मिल रही है और बेस, सो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर स्पेशल केस, और ऐसे ही आप आइसोसेलीज ट्राइंगल के लिए भी देखो, इफ यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द थर्ड साइड, सो द थर्ड साइड विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। बट अगर तीनों की साइड्स अनइक्वल हैं, देन यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर बात? सो जस्ट नोट इट डाउन। So I hope you understand the Heron's formula, proof of that also. So in the next video, we are going to solve some questions based on this. So see you in the next video. Bye.